Well, boys and girls, as you are aware, today we are to hold your quiz. But before that, let me discuss one topic, that is managerial decisions. Under managerial decisions, if you remember, we discussed what to produce, how much to produce, how to produce, and it involved three types of production relationships. We have discussed three types of production relations. First of all, there was input-output relation. Input-output relation, under which we assumed only one variable input is combined with the rest of the fixed inputs. One variable input combined with the rest of the fixed inputs, and its impact on the output was to be noted. How output responds to changes in the variable input. And under this case, we explained three stages of production, out of which stage 1 and stage 3 both were irrational, whereas stage 2, the only middle stage, it was considered rational. Now, if you remember, we have already discussed that in all three production relations, or in all the possible situations, objective of the business manager or the business person is to maximize profit. But situation differs. In all these three, situation differs, and accordingly, the strategy of the business manager will change. Now, in an input-output relationship, there is on one side there is variable input, on the other side there is output, and we evaluating the price or the cost of input on the one hand and value of the output gain on the other hand. And if you remember, the optimum use of input was decided, that where Px is equal to VMP of X, value of the marginal product. If marginal product, you remember, contribution of the last unit of the variable input, contribution of the last unit towards total output. So what contribution is made? Its value in output terms, that is compared with the cost of that input. And as long value of the marginal product is greater or equal to the price of input, we continue to use or expand the usage of that variable input. So we go up to the point where TR minus TVC is maximum. TR is the total revenue, mean by total output into price of output. Total revenue minus TVC is variable input, units of the variable input used for that output into price of input. So TVC, so positive gap between TR and TVC should be maximized. So this was the first our production relation, input-output relation. So in other case here, on output basis, we can computed marginal cost, variable cost, average variable cost, average total cost, and we assumed the firm is price taker in the market. Market price is to be accepted by the firm. So we produce output to the point where MC equals market price, which is also termed as MR.
and MR is equal to AR. So MR is equal to MC. That is the decision variable for output determination under competitive market conditions. That output is to be produced where MC equals MR, provided this point does not exist below average variable cost. Average variable cost से अगर ये point नीचे चला जाए तो we call it shutdown point. तो ये आपका था input output relationship. Then it was input relationship, जिसके अंदर we assume that there are two variable inputs. Instead of one variable input, we assume two variable inputs. Two variable inputs are combined, and again we assume there are possibilities, fixed proportion of input combination like taxi and driver, like power looms and worker, like computer and the computer man who is to work on computer. So on one computer only one man can sit and work. So fixed proportion, and other was variable proportion. And under variable proportion, we use the term isoquant. If you remember, isoquant means same quantity of output. So isoquant is giving you various options, various combinations of two inputs, different possible combinations of two inputs which can alternately be used for producing a given level of output, or various combinations. You can use any from those, but your output level remains same. Now here, when we say output remains same, what does it mean? Previously, in input-output relation, we said MC equals MR. We said TX is equal to VMP. So on one side, it is cost. On the other side, it is revenue. Again here, because profit depends on cost and revenue. Here when we say we have isoquant is there, output quantity is there. From output quantity, we can calculate the expected revenue, because the output quantity multiplied by its market price, that will give you expected total revenue. Now that will remain same. Expected total revenue will remain same. Lekin what will happen? Different output combination, combinations will require different expenditure levels. Expenditure levels unke differ kare. Ab what will do? An efficient business manager, what she will do, business manager, is to find out, to locate a combination which requires minimum or lowest possible cost. So least cost combination. Again, उसका ultimate objective profit maximization है, लेकिन profit maximization के लिए उसको focus करना है on cost minimization. Cost minimize हो गई तो समझो उसका profit maximize हो गया. और cost minimize करने के लिए आपको बताया था मैंने कि graphically you can find how you can find it either graphically by locating the point of tangency between the isoquant and the budget line, or the isocost line. Isocost line and isoquant. Isoquant gives you different combinations of inputs which promise you for the same output, whereas isocost line, it provides you again various combinations of two inputs which promise for the same cost. So all combinations which lie
on the ISO cost line will require the same total expenditure. So ISO cost line, because you have a budget constraint, the business manager has a budget constraint. उस budget constraint को मलहूज़े खातर रखते हुए ISO cost line ड्रा की जाती है। ISO cost line दोनों इनपुट की relative pricing, which input is costly, which input is cheaper in the market, उसको भी उसकी जो slope है, steepness और flatness, that shows that के आपके वो input हैं उनका आप उसमें क्या relation है, तो वो आपको ये whereas the ISO quant उसकी जो slope है उन वो दो input की physical substitution, technical relationship उनका जो एग्जिस्ट करता है उसको एग्जिस्ट शो करती है। अब दोनों को जब आप मिलाएंगे तो देयर विल बी ओनली वन पॉइंट which will show tangency between the ISO quant and ISO cost line। तो वो जो एक पॉइंट यूनिक है that will be the optimum point or that will be the least cost combination। ठीक है, तो ये ग्राफिकली था। फिर हमने कहा आपको मैथमेटिकली कि आप इनकी जो है MRS और MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इन दो इनपुट की सब्स्टिट्यूशन वो मालूम करें। MRS चेंज इन द सेव्ड इनपुट, क्वांटिटी सेव्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एडेड। तो फी यूनिट ऑफ द एडेड इनपुट ये आपको क्वांटिटी ऑफ द इनपुट सेव्ड ये बताएगा। तो ऑन द अदर हैंड इट शुड बी इक्वल टू IPR, इनवर्स प्राइस रेशियो। Saved input, change in saved input divided by change in added input should be equal to price of the added input divided by price of the saved input। तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा एक तरफ चेंज इन सेव्ड इनपुट इनटू प्राइस, इट्स प्राइस। तो वो कहेगा कि पॉइंट ए से बी पे जाने से टोटल अमाउंट, टोटल कैश सेव, जबकि दूसरी तरफ क्वांटिटी ऑफ एडेड इनपुट इनटू इट्स प्राइस, वो कहेगा ए से बी जाने पे कितनी इजाफी खर्च करनी पड़ी। तो अब अगर ए से बी, बी पे से सी, सी से डी पे जाने के लिए अगर आपकी कॉस्ट, change in cost is greater than the amount saved, there is no fun in going forward, you move backward। नहीं, ये तो खसारे का सौदा है, वहां जाएंगे तो जेब से ज्यादा खर्च होंगे, बचत कम हो। तो यू आर लुकिंग फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइज करेंगे अगर तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज तो आपको बोला था कि एक तो आपके लिए ये है कि दोनों आपको आइसो क्वांट के लिए टेबल दिया जाएगा, दो कॉलम के अंदर x1 और x2 या उनके कोई भी लेबल हो सकते हैं, xj, a label and capital L and K, any label can be given, या उनके नाम, बाकायदा नाम आ जाए इनपुट्स के। तो आपके वो इनपुट हो, उनकी क्वांटिटीज दो कॉलम के अंदर, उनकी क्वांटिटीज, आप उन क्वांटिटीज के अगेंस्ट एक की क्वांटिटी बढ़ रही होगी, दूसरे की क्वांटिटी कम हो रही होगी। दैट इज व्हाट यू कॉल ए सब्स्टिट्यूशन। एक इनपुट दूसरे इनपुट की प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सो यू एडिंग वन एंड यू सेविंग द अदर, यू एडिंग वन यू सेविंग अदर। तो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एक दो कॉलम है, एक की क्वांटिटी बढ़ रही, दूसरे की कम हो रही, तो दोनों की क्वांटिटीज आपको मिलेंगी। तो इनको के अगेंस्ट आप ए बी सी डी इन कॉम्बिनेशंस को लेबल कर दें, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी डी ई एफ जी एच। तो ये 8 10 12 कॉम्बिनेशन होंगे। तो अब ईच कॉम्बिनेशन
ए कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट दोनों इनपुट्स की क्वांटिटी है, बी के अगेंस्ट दोनों की क्वांटिटीज है, सी के अगेंस्ट दोनों इनपुट्स की क्वांटिटीज हैं। तो दोनों इनपुट्स की क्वांटिटीज को उनकी रिस्पेक्टिव प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके उनको जमा कर दिया जाए, तो दैट विल बी टोटल आउटले अप्रोच, कि उस कॉम्बिनेशन ए को एज ए टोटल कॉम्बिनेशन को खरीदने पे कितना खर्च आएगा। अगर कॉम्बिनेशन बी खरीदें तो उस पे कितनी लागत आएगी, अगर कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन डी खरीदते हैं तो उन पे लागत कितनी आएगी। तो ये आपकी लागत का तखमीना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए आ जाएगा। अब ये 8-10 कॉम्बिनेशन मैंने कहा होंगे, 12 हो जाए, तो इन 12 आपकी फिगर्स उनके अगेंस्ट कॉस्ट फिगर्स, तो उनमें से सिंपली फाइंड आउट द लोएस्ट फिगर। किस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट जो फिगर है वो लोएस्ट आई, तो जो लोएस्ट फिगर है उसको हाईलाइट कर दें, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को हाईलाइट कर दें कि आज के दिन में आज की प्राइसेस, आज का वो टेक्निकल रिलेशनशिप जो MRS है उसके सामने ये हमारा कॉम्बिनेशन वो लीस्ट कॉस्ट है, कम खर्च वाला नशी। और तीसरी अप्रोच हमने कहा था, तीसरा प्रोडक्शन रिलेशन था हमारा आउटपुट रिलेशन। आउटपुट रिलेशन के अंदर हमने कहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि ज्यादा इंटरेस्ट का बायस था। वैसे तो हमने उसमें कहा कि जी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स भी हैं which are mutually produced, joint, ठीक है, तो प्राइमरी और मेजर प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। 5 स्टेप्स कपड़ा तैयार होता है वीविंग यूनिट में कपड़ा तैयार होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो वेस्ट भी तैयार होता है, वहाँ रुई धागा उठता है, उसको इकट्ठा करते हैं, वो वेस्ट में बिक जाता है। अगेन कपड़ा तैयार होता है, उसमें कहीं ना कहीं डैमेज्ड पीसेस वो काट के अलग करके वो अलग बिकते हैं, कट पीस। तो मेन जो आपकी खानों के अंदर है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगी, लेकिन उसके अंदर जो पीसेस आए वो जो डैमेज वो आप अलग रेट पे एज बाई प्रोडक्ट। तो जॉइंटली प्रोड्यूस्ड। फिर हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, लेकिन ज्यादा जो इंटरेस्ट का जो मौजूद थी वो कॉम्पिटिटिव, और उसके अंदर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो ये था, दैट वाज द कर्व व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन, कि अगर आप अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, आप अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को आप बुरुए कार लाएं, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, हाउ मच वी कैन प्रोड्यूस। तो पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी आपको उसके इस्तेमाल से, कि पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज टू। तो ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज जहां पे अजम्पशन है कि एक प्रोडक्ट का 0 लेवल और दूसरे की मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी, और या इस प्रोडक्ट ए का 0 लेवल और प्रोडक्ट बी की मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी, तो उनके दरमियान जो है वो कॉम्बिनेशन है, कंप्रोमाइज, कि आप एक को बढ़ा सकते हैं दूसरी को कम करके। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, तो यहाँ पे जब आउटपुट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे what will be your focus on by utilizing the available resources, land, labor, capital। तो जो available resources उनकी opportunity cost तो एक है। It means you can say the any combination of output you choose, your total capital, total land, total labor, total capital used remain the same. What does it mean? It means कि आपकी total cost change नहीं हो रही। Production possibility curve
shows various combinations of two products that can alternately be produced by utilizing the available bundle of resources and technology. जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, किसी के पास अगर ज़राअत की बात करें तो किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5 सूखे जमीन है और किसी के पास उससे कहीं ज्यादा। तो किसी के पास कैपिटल है नहीं, उधार चीजें लेते हैं, किसी के पास वो जो है 5 लाख सरमाया, किसी के पास 10 लाख। तो अगेन ये डिफरेंट, तो जो उसके अपने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ऐसे ही वीविंग यूनिट की बात करें, किसी के पास 16 पावर लूम्स हैं, किसी के पास 32 हैं, किसी के पास सैकड़ों में है। तो वो फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अब उसके ऊपर अगर वीविंग यूनिट है तो उसके ऊपर आप सिल्क तैयार करें या आप कॉटन तैयार करें, आप वूल तैयार करें या आप मिक्स्ड पॉलिएस्टर, तो विच प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, पावर लूम्स वही है। जिस तरह का धागा चलाएंगे उस तरह का कपड़ा तैयार हो जाएगा। धागा जो लेने जाएंगे पैसे वही हैं, वही पैसे, उसी पैसे से आप जो है वो ब्लैक यार्न खरीद लो, व्हाइट यार्न खरीद लो, ब्लू खरीद लो, उसी से सिल्क यार्न, उसी से कॉटन यार्न, उसी से वुलन जो है वो खरीदना हो वो खरीदने मिल जाएगा। और अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोड्यूस प्लेन क्लॉथ, you can produce stripped cloth, you can produce printed cloth। तो जो आपका जी चाहे ताना बाना चेंज करेंगे तो आप अगेन कॉटन और जो है वो नायलन यू कैन मिक्स, तो मिक्स्ड वैरायटी, तो आपकी जब पॉसिबिलिटीज और द कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, आपकी कॉस्ट सेम और आउटपुट पॉसिबिलिटीज। यहाँ अगेन प्रोड्यूसर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। अब कॉस्ट सेम है तो व्हाट विल हैव टू बी डन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब जो आउटपुट कॉम्बिनेशंस हैं, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से ट्रेस करनी है विच प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन इज प्रॉमिसिंग फॉर द हाईएस्ट पॉसिबल रेवेन्यू। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, जहां रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए तो समझो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि यहाँ पे आप व्हाट यू विल डू, अगेन ग्राफिकली यू कैन सी द रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन बाय लोकेटिंग द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी between the ISO revenue line and the production possibility curve, production possibility curve and ISO revenue line, उनका point of tangency। तो वहां से आपको जो है वो revenue maximizing combination of two products मिलेगा। दूसरा अगेन वो टेबल के अंदर जहां जो पॉसिबिलिटीज वो टेबल में आपको दी जाए, Y1 Y2, Y1 Y2 दो प्रोडक्ट्स हैं सपोज, तो उनकी क्वांटिटीज कॉम्बिनेशन A B C D E F के अगेंस्ट आपको क्वांटिटीज उनकी होंगी। अगेन एक बढ़ रही होगी, एक कम हो रही होगी, एक की क्वांटिटी बढ़ रही, एक की क्वांटिटी कम हो रही। तो अब अगेन ईच कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट आपको दो फिगर्स मिलेंगी, Y1 की Y2, दोनों की फिगर्स हर कॉम्बिनेशन के सामने। अब उन जो क्वांटिटीज को रेस्पेक्टिव आउटपुट प्राइसेस Y1 और Y2 की क्वांटिटी को Y1 की प्राइस Y2 की प्राइस अपनी अपनी प्राइस से मल्टीप्लाई करके इनको जमा करें तो दैट विल गिव यू टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन। तो उस कॉम्बिनेशन से जो मुमकिन रेवेन्यू है उसकी फिगर आपको मिलेगी। और 8, 10 या 12 कॉम्बिनेशन अगेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज होंगी तो उनके अगेंस्ट आपको रेवेन्यू एस्टीमेट मिल जाएंगे।
जब रेवेन्यू एस्टिमेट मिल जाए तो यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई विच इज द हाईएस्ट फिगर। हाईएस्ट फिगर आपको मिल जाएगी तो उस हाईएस्ट फिगर को आप हाईलाइट कर दें, उस कॉम्बिनेशन को आप हाईलाइट कर दें एंड और इसी रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन को यहाँ पे हम कहते हैं दिस इज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन बिकॉज द प्रोड्यूसर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। और कोई ये सब्जेक्टिव इशू नहीं है, यहाँ पे पसंद की बात नहीं है कि जी मुझे कौन सा ब्यूटीफुल है। भैंस गाय रखी हुई हो तो भैंस जनाब ये कुंडी जिसके सींग वो मुड़े हुए हों वो खूबसूरत तो लग सकती है, जिसका माथा सफेद हो मे बी इट माइट बी ब्यूटीफुल, लेकिन उसकी ब्यूटी से गर्ज नहीं है, गर्ज उसके मिल्क से, हाउ मच वाटर, हाउ मच वंडा it takes and how much milk in return the animal gives to you। तो आपने end of the day convert ये compare करना है उसका carving interval, how much time, दो carving के दरमियान कितना टाइम है, ठीक है। what is the dry period within one lactation, dry period जब कोई दूध नहीं दे आपने सिर्फ उसको चारा डालना है, आपने उसे फीड करना है, उसे मेंटेन करना है। तो अगर एनिमल में ये ड्राई पीरियड चला हो, कार्बिंग इंटरवल लॉन्ग हो, तो आमतौर पे वो जानवर इकोनॉमिकल नहीं कंसिडर होता। उस जानवर को रखने में आपको आमतौर पे बचत नहीं, नुकसान होता है। Whereas, तो यहाँ पे ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, तो अगेन मैथमेटिकली MRPT, marginal rate of product transformation, product transformation। suppose पहले आप एक राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस ये टोबा में फैसलाबाद में आप हैं और आप राइस पैदा कर रहे हैं, जबकि कोई आपको कन्विंस करता है कि यार नहीं अकेला राइस नहीं, कुछ काटन लगा। अब काटन लगाने के लिए सबसे पहले जमीन का 1 एकड़ आप राइस से स्नैच करेंगे, स्नैच करके उस 1 एकड़ पे ट्रायल के तौर पे आप कॉटन लगाएंगे। अब जो पानी उस खेत को लगता था अब वो राइस की बजाय वो कॉटन को लगेगा। उस खेत में जो पैडी, जो सीड, पनीरी वगैरह वो अब कॉटन सीड लेंगे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल वी आर ट्रांसफॉर्मिंग। एक्चुअली हमने राइस को ट्रांसफॉर्म किया इनटू कॉटन। तो हमने राइस की कुर्बानी दी, राइस की सैक्रिफाइस और कॉटन प्रोड्यूस कर ली, या कॉटन की कुर्बानी दी और हमने राइस पैदा कर लिया। तो इसके सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग वन प्रोडक्ट फॉर द अदर। तो MRPT, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर सिंपल रखना हो यू कैन सिंपली कॉल इट MRS, marginal rate of substitution। Marginal rate of substitution again should be equal to IPR, inverse price ratio। Inverse price ratio तो वो आपको revenue maximizing combination दे देगा, revenue maximizing combination। तो उससे again तो तीनों में input output relationship, input relation और आउटपुट रिलेशन, तीनों सूत्रों में मतमाए नजर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी इन केस 1 इट वाज PX is equal to VMP। in this case 2 input relationship it was where your MRTS is equal to IPR, or where your isoquant and isocost are tangent to each other। In case of production or output relation, it was revenue maximization, and the point of tangency between the production possibility curve and the iso revenue line। तो strategy कहीं revenue maximizing, कहीं पे cost minimizing, और कहीं पे straight away comparing the cost
and revenue, maximizing the gap between the revenue and cost. So this is what we discussed briefly, we have already covered. तो अभी मैं आपको आपके ग्रुप में लिंक भेज रहा हूं आपके ग्रुप में, वो क्विज के लिए, और आपके उस क्विज के लिए 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के बाद यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट, वो फिर सबमिट नहीं होगा,